Good morning, students. How are you, beta? So, here Anita Sharma, and we are here to start our EVS syllabus from chapter first. So, let's see chapter first. Your chapter first, we are going to start. The name of chapter first is Understanding Our Relations. As title clear that in this chapter we are going to learn about our relations. So let's see the points to be learned in this chapter. इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे ये हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट विल बी टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली टाइप क्या होते हैं, है ना. फैमिली के टाइप्स कौन से होते हैं तो देखते हैं हम. पहला होता है जॉइंट फैमिली एंड द अनदर वन इज न्यूक्लियर फैमिली. तो इसकी डेफिनेशंस हम उसके अंदर रीड करेंगे, पढ़ेंगे. सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे अडोप्शन. अडोप्शन किसे कहते हैं. थर्ड पॉइंट वी विल सी रीजंस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली हम यहाँ टाइप्स ऑफ फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली पढ़ रहे हैं. और उसके बाद एक पॉइंट हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का अर्थ होता है बनना. तो न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बन रही है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ joint family. As we know that each and every factor has both sides, that is advantage and disadvantage. So we will see in next point merits and demerits of nuclear family and merits of and demerits of joint family. So these are our points. The sixth one is इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस किसे कहते हैं. जनरली अगर हम हिंदी में बोलें इनहेरिटेंस विरासत से जो हमें गुण मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना. तो उसको डिस्कस हम 6 पॉइंट में करेंगे. और इनहेरिटेंस के क्रम में ही हम 2 साइंटिस्ट को भी पढ़ेंगे. फर्स्ट इज जॉन ग्रेगर मेंडल एंड सेकेंड इज हरगोबिंद सिंह खुराना. यस, सो दिस इज द इंट्रो पार्ट ऑफ आवर चैप्टर and let's proceed with one by one these topics. Look, as we clear that first point is types of family. So let's see types of family. There are 2 types of family as you are seeing written here on the boxes. Joint family. In joint family, children live with their grandparents, parents, uncle, auntie, cousin cousins and other relatives also. And in a nuclear family there are only parents and their children. In children there may be one child, there may be 2 children. Okay, so have you cleared the concept of joint family and nuclear family. Joint family is a big family where children live with their grandparents, parents, uncle, auntie, okay, taiji, tauji. That is in English there are the same word uncle, auntie, but in Hindi we can say chacha, chachi, tauji, taiji, because in your examination sometimes the Hindi word is given as like father's father is our, then dadaji also is given. So you have to remind that word also. Mother's father is our nanaji, maternal grandfather, and father's father is our dadaji, that is paternal grandfather. Is that clear? So I hope that you have concept clear of joint family and nuclear family. So let's proceed. Here we make differences between joint family and nuclear family. So let's see one by one what joint family has the characteristics. A family, first of all we just see the definition. Family in which children live with their grandparents, parents, uncles, aunties and cousins is called joint family, as I defined you in last slide. And let's see nuclear family. A nuclear family in which children live with their parents only. Clear? Let's proceed. Second point of joint family, second characteristic of joint family. A joint family consists with many relationships, and nuclear family
This kind of family consists with mother, father and their 1 or 2 children. It means joint family में बहुत सारे रिलेशनशिप एक साथ मिलते हैं, पर न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मदर, फादर और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं. In very rare family, we can find 3 children also. Let's see the third characteristic of joint family. A child has 2 families. This characteristic we will find in both family. A child has 2 type of family, maternal family and paternal family. And we can say here also mother's family is called maternal family and father's family is called paternal family. Is that clear? Yes. Let's proceed now. Let's understand some relations of maternal and paternal family. I have included almost 10 relations to understand you, because in examination such type of questions are asked. आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, जैसे फादर्स फादर इज योर, फिर आगे ब्लैंक दिया हुआ होता है, या सम टाइम MCQs के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, दादाजी, नाना जी, है ना, क्योंकि अगर ग्रैंडफादर आया तो वो तो कॉमन आंसर हो गया, या ग्रैंडफादर आएगा तो इट में भी पॉसिबल कि मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा हुआ हो, पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखा हुआ हो, अंकल लिखा हुआ हो, मामा लिखा हुआ हो, चाचा लिखा हुआ हो. ठीक है, एक राइट ऑप्शन होगा, 3 अदर ऑप्शन होंगे, या फिर केवल 1 वर्ड में आएगा तो वो आपको कंप्लीट आंसर खुद को लिखना है. क्लियर? सो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट. फादर्स फादर इज माय ग्रैंडफादर. ओके, पैटर्नल ग्रैंडफादर, या फिर हम क्या कहेंगे उनको, दादाजी. क्या कहेंगे? दादाजी. ओके, सो आई होप दैट we also live in family and we have clear our concept about it. Father's mother is my paternal grandmother और दादी जी. पापा की मम्मी हमारी कौन लगती बेटा? दादी जी लगती है, राइट. फादर्स ब्रदर को हम पैटर्नल अंकल कह सकते हैं या चाचा कह सकते हैं. मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट हिंदी वर्ड भी दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि बिफोर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिंदी वर्ड एज लाइक मौसी, मामा, चाचा, ये डायरेक्ट हिंदी वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. चाचाज वाइफ इज माय चाची, और इंग्लिश वर्ड अगर हो तो आंटी. इंग्लिश में बुआ को भी आंटी कहते हैं, ताई जी को भी आंटी कहते हैं, मौसी को भी आंटी कहते हैं और चाची को भी आंटी कहते हैं. और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बच्चों को रिलेशन की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, इसका इवेल्युएट करने के लिए आपको एग्ज़ाम में हिंदी वर्ड भी दिया हुआ होता है. ठीक है, ताकि पता चले बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो आंटी लिखते क्लियर, बहुत सारे रिलेशंस है ना. यस, लेट्स सी फिफ्थ पॉइंट. फादर सिस्टर इज माय पैटर्नल आंटी और बुआ. मदर्स फादर इज माय मैटरनल ग्रैंडफादर और नाना जी. मदर्स मदर इज नानी जी और पैटर्नल ग्रैंडमदर. मदर्स ब्रदर इज माय पैटर्नल अंकल और मामा जी. मामाज वाइफ इज मामी जी and mother's sister is my maternal auntie or mausi. Clear? So I hope you have understood all this, and let's proceed now. The next slide is we will see the adoption. Clear? अब adoption किसे कहते हैं बेटा? देखिए, सबसे पहले मैं इसका हिंदी वर्जन आपको बताती हूँ. अडोप्शन हम कहते हैं गोद लेने को. अडोप्शन हम किसे कहते हैं? गोद लेने की एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है. हो सकता है आप छोटे हैं तो आपको ये प्रोसेस अभी तक नहीं पता होगा. तो लेट्स सी, हम अभी यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. देखो, अगर कोई ऐसा कपल होता है, अब पहले ऐसा होता था कि जिनके अपने इश्यूज़ नहीं होते थे, जिनके अपने बच्चे नहीं होते थे, वो कपल किसी ऑर्फनेज में जाके, ऑर्फनेज किसको कहते हैं? अनाथालय को, है ना. ऑर्फनेज किसे कहते हैं? अनाथालय को.
जिसके अंदर जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं ऐसे बच्चों को रखा जाता है, या जिन बच्चों को माता पिता त्याग देते हैं। हम कई बार न्यूज़पेपर में सुनते हैं ना कि वहाँ पर लावारिस बच्चा मिला, जिनको कोई छोड़ कर चला गया। तो ऐसे बच्चे एक अपना जैसा स्कूल होता है वैसा एक आश्रम टाइप एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, जिसके अंदर बहुत सारे केयर टेकर्स होते हैं और वहाँ पर इन बच्चों का केयर टेक किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ऐसे कपल जिनके अपने इश्यूज़ नहीं होते हैं, अपने बच्चे नहीं होते हैं, वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट का मतलब एक तरह से बेटा लीगल प्रोटेक्शन होता है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नए कपड़े लाते हैं बिकॉज यू आर देयर सन और डॉटर, और उसी तरह से जब हम ऑर्फनेज से किसी बच्चे को लाते हैं तो सेम अपने बेटे या अपने बेटी जैसा उन्हें उनका हम लालन पालन पोषण बहुत सारा प्रेम देते हैं और अपना नाम देते हैं कपिल, तो उसी को हम अडॉप्शन कहते हैं। ऑर्फनेज से भी हम किसी चाइल्ड को ला सकते हैं या फिर किसी रिलेटिव के चाइल्ड को भी कोई कपल लीगल प्रोटेक्शन दे सकता है। आई होप आपकी समझ में आया। चलो तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार समझते हैं। When legal protection is given to any relative's child, लीगल प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? कानूनन रूप से सुरक्षा प्रदान करना। मतलब उसमें कुछ पेपर फॉर्मेलिटी होती है जिसको एक कपल को साइन करना होता है और पूरी तरह से इस बात की गारंटी देनी होती है कि अब ये हमारा बच्चा हुआ और हम इसे अपने बच्चे की भांति ही आर्थिक रूप से अर्थात इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, लविंगली, केयरली हम इसका टेक केयर करेंगे। ठीक है, तो व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर एज लाइक ऑर्फन चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ आस्क्ड टू इन एग्जामिनेशन also। एग्जामिनेशन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अडॉप्शन, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन दैट व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर एज लाइक ऑर्फन चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। क्लियर? लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। रीजंस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। एज वी सी द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, तो जहाँ सिर्फ पेरेंट्स अर्थात मदर फादर और उनके एक या दो बच्चे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। क्लियर? तो न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अगर हम अपने इंडिया की हिस्ट्री को देखते हैं या कुछ 10 to 20 ईयर्स बिफोर देखते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली ऑलमोस्ट ना के बराबर थी ही नहीं न्यूक्लियर फैमिली। पर अगर हम अब देखते हैं तो अब जॉइंट फैमिली के जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स बढ़ रहे हैं। तो क्यों होती है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का फॉर्मेशन? फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन का मतलब हो गया बनना। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्यों बन रही है इसके पीछे हमने कुछ रीजंस लिखे हैं, कुछ कारण लिखे हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेंबर इन सिटीज फॉर हायर एजुकेशन और जॉब। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वन और अदर रीजन। किसी भी कारण से जब एक फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, वो जाते हैं, अपने आप की जगह बदलते हैं, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। ये फैमिली के किसी एक मेंबर का हो सकता है और पूरी फैमिली का भी हो सकता है। तो एक जगह से मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक गांव से शहर, शहर से गांव आना, ये सब चीज़ माइग्रेशन में इंक्लूड होती है। तो
जब फैमिलीज़ का माइग्रेशन होता है फैमिली मेम्बर्स का, किस रीज़न से? हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि गांव में हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कम होती है, चॉइसेस कम होती है, या फिर जॉब के कारण से जब फैमिलीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है तो पूरी फैमिली तो जा नहीं सकती, तो फिर क्या होता है, फैमिली में जो फैमिली मेम्बर गया है जेंट्स में, उसकी वाइफ और उसके बच्चे जाएंगे तो कौन सी फैमिली क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर कौन सी फैमिली फॉर्म हो जाएगी? न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म हो जाएगी। सेकंड रीज़न हम देखते हैं, स्मॉल हाउसेज इन सिटीज़। हाई रेंट्स होते हैं, घरों के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं और घर छोटे होते हैं। छोटे घरों में पूरी फैमिली का रहना पॉसिबल नहीं होता, तो घर वाले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड करते हैं कि ओके बाबा तुम चले जाओ, फिर खाने की प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारी वाइफ को ले जाओ, और बच्चों को तो पढ़ाना ही है तो बच्चों को भी ले जाओ। तो ऐसे रीज़न से पीपल क्या करते हैं, गांव से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं और न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन होता है। अगर हम थर्ड रीज़न, मैंने अभी सेकंड रीज़न में इंक्लूड करके बताया आपको, हाई रेंट्स ऑफ हाउसेज इन सिटीज़। फोर्थ इज हैबिट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। वी आर नॉट फीडिंग यू निगेटिवली, मैं आपको कहीं भी निगेटिव रेस्पॉन्स नहीं फीड कर रही हूँ, बट समटाइम इट हैपन्स कि जब हम बहुत सारे मेंबर्स फैमिली में रहते हैं, सबके जो हैबिट्स होती है अर्थात आदतें होती है वो एक दूसरे से अलग होती है, और जब एक दूसरे से अलग आदतें हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं तो भी न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली। जब फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और सब अलग अलग जॉब करते हैं तो क्या होता है, किसी की जॉब बहुत हाई रैंक्ड होती है, किसी की जॉब थोड़ी लो रैंक्ड होती है, तो उनकी इनकम भी हाई और लो होती है। जब इनकम हाई और लो होगी तो उनकी एक्सपेंडिचर पावर, मतलब खर्च करने की पावर भी ऑब्वियसली हाई एंड लो होगी, और इस तरह से भी जब कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं बैठता है तो भी जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन होता है कि तुम्हारा जितना इनकम उसमें तुम सेटअप करो, हमारा जितना इनकम उसमें हम सेटअप करेंगे। ठीक है, कैपेसिटी टू स्पेंड हमने ऊपर वाले पॉइंट में ही इंक्लूड करके समझा है। नेक्स्ट, नेचर एंड बिहेवियर, वही हैबिट से मिलता जुलता पॉइंट नेचर एंड बिहेवियर होता है ना। जैसे किसी को जल्दी उठना अच्छा लगता है, कोई कहते हैं, अभी अपने घर में अगर हम दादाजी दादी जी को देखते हैं तो क्या होता है कि जल्दी उठो, जल्दी उठना अच्छा होता है, एनर्जेटिक टाइम होता है, सुबह 4 o'clock उठना चाहिए, जल्दी नहाना चाहिए, समय से बाहर जाना चाहिए, समय से घर में वापस आना चाहिए। कुछ फैमिलीज़ में तो सब लोग इन बातों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, पर कुछ फैमिलीज़ में इन बातों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता है, और यंग जनरेशन अपनी बात पर अड़ी रहती है और जो ओल्ड जनरेशन है वो अपनी बात पर अड़ी रहती है, और इस तरह से जब उस फैमिली में जनरेशन गैप क्रिएट होता है तो सेपरेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली occurs. Okay, continuous changes in way of celebration festival. Again we can give example of some festivals. हम क्या करते हैं, हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका, हमारा मतलब अब थोड़ा यंग जनरेशन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना, क्योंकि हम बहुत सारे कल्चर को मिक्सअप कर देते हैं, फॉरेन कल्चर को भी मिक्सअप कर देते हैं। हमें किसी फ्रेंड के बर्थडे पर लेट नाइट पार्टी में जाना अच्छा लगता है, घर में अदर मेंबर को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मम्मी पापा को लगता है कि चलो थोड़ा सा बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए, दादाजी दादी जी को लगता है कि नहीं होना चाहिए, और इन तरह की बातों से जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वे ऑफ सेलिब्रेशन फेस्टिवल, तब भी न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट 5 रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। क्लियर? तो आपको यहाँ रीजंस लिखने पड़ेंगे, इसीलिए हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में ये रीजंस लिखे हैं। या फिर दिस इज क्वेश्चन, we saw that what is adoption.
Here we saw that the next कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, तो लेट प्रोसीड. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. देखो बेटा, हर फैक्टर के दो एस्पेक्ट होते हैं. जॉइंट फैमिली के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं. तो मेरिट्स और डीमेरिट्स का मीनिंग क्या होता है? मेरिट का मतलब होता है फायदे, एडवांटेजेस, और डीमेरिट्स का मीनिंग होता है थोड़े नुकसान. एडवांटेजेस मतलब मेरिट्स और एडवांटेजेस मतलब डीमेरिट्स. लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली फर्स्ट. पहले हम मेरिट्स मतलब फ़ायदे देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं. पहला, इजी टू मैनेज एक्सपेंडिचर. अगर पापा की सैलरी है या पापा और मम्मी दोनों की है और उनको सिर्फ 2 चाइल्ड को टेक केयर करना है, ब्रिंग अप करना है, तो क्या होगा कि वो अपना पूरा इकोनॉमिकली बच्चों के फ्यूचर सिक्योर के लिए लगा सकते हैं या अपने लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा स्टेटस को और अपग्रेड कर सकते हैं. तो एक्सपेंडिचर मैनेज करना इजी होता है. और 2 ही लोग इनकम सोर्स के लिए होते हैं, कमाने वाले होते हैं, और उनको 10 लोगों के ऊपर एक्सपेंडिचर मैनेज करना होता है, अर्थात जॉइंट फैमिलीज़ में. तो जॉइंट फैमिलीज़ में थोड़ा एक्सपेंडिचर हार्ड होता है. ठीक है. द अनदर वन इज गेट मोर टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर. है ना, मम्मी को भी थोड़ा कम काम होता है, तो बहुत सारा टाइम जो है बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती है, उनकी स्टडी के साथ स्पेंड कर सकती है. व्हेन वी आर गिविंग दिस लेक्चर यू विल योरसेल्फ हैव एक्सपीरियंस दैट. आप अपने खुद पर आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जिनकी फैमिली छोटी है उनकी मम्मियाँ शायद अभी पास में बैठ के और लेक्चर सुन रही होगी, बच्चे को फिर से टीचर का समझाया हुआ रिपीट कर रही होगी. और जिनकी बिग फैमिली है वो क्या कर रहे होंगे, अभी वो अपने फैमिली के वर्क में कहीं ना कहीं बिजी होगी. और जब थक जाती है काम करके तो थोड़ा सा लगता है मम्मी को भी कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लें. है ना, कभी कभी बिना रीज़न थोड़ा सा चिड़चिड़ भी हो जाती है. तो गेट मोर टाइम टू स्पेंड विथ ईच अदर. पापा भी ऑफिस से आते हैं तो उनको भी थोड़ा बच्चों के साथ खेलना कूदना, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. थर्ड वन इज पेरेंट्स कैन गिव मोर फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रन. जब छोटी फैमिली होती है, बच्चे कम होते हैं, पापा की अच्छी इनकम होती है या कम भी होती है थोड़ी, तो जो भी है उनके एक्सपेंडिचर सोर्सेस सिर्फ उनके चिल्ड्रन होते हैं और इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वो देने के लिए एबल होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज ड्यू टू लेस फैमिली गैदरिंग प्रोग्राम्स चिल्ड्रन डू नॉट गेट डिस्टर्ब इन स्टडी. बड़ी फैमिली होती है तो कभी चाचा जी के कोई प्रोग्राम, है ना, कभी इनका बर्थडे, कभी उनका बर्थडे, कभी कोई मिलने आ गया, कभी कोई कुछ करने आ गया, तो ऐसे फैमिली ओकेजन्स बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ बच्चे डिस्टर्ब होते हैं. और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर फैमिली ओकेजन्स कम होते हैं तो बच्चों की स्टडी कम डिस्टर्ब होती है. क्लियर. द लिटिल चांस ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियन. मतलब जो मतभेद होते हैं एक दूसरे से, ओपिनियन का डिफरेंसेस होता है, उसका चांस बहुत कम होता है. ज़्यादा लोग होते हैं तो सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. तो ये हमने देखा मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. अब मेरिट्स तो हैं, मतलब फ़ायदे तो हैं, पर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. तो लेट्स सी क्या क्या होते हैं. चिल्ड्रन कैन नॉट गेट द अफेक्शन ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स. सिर्फ मम्मी पापा होते हैं और वो भी काम पर चले जाते हैं, बिकॉज अभी का जो मॉडर्न एरा है वो मम्मी पापा दोनों के वर्किंग का है. तो क्या होता है कि उनको बाकी फैमिली मेम्बर्स का अफेक्शन नहीं मिल पाता है. दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, अपने बराबरी के कज़िन, सिबलिंग्स, इन सब का साथ वो इंजॉय न्यूक्लियर फैमिली में नहीं कर पाते हैं. सेकेंड पॉइंट, चिल्ड्रन रिमेन अलोन इफ पेरेंट्स आर वर्किंग. हमने फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड कर लिया इसका एक्सप्लेनेशन कि माता पिता अगर दोनों काम पर चले जाते हैं तो बच्चे पीछे अकेले रह जाते हैं, है ना. और फिर उनमें टीवी ज़्यादा देखने की, मोबाइल ज़्यादा हैंडल करने की क्या हो जाती है,
हैबिट थोड़ी डेवलप हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज लेस फैमिली मेम्बर्स टू टेक केयर ऑफ ईच अदर. सपोज मम्मा बीमार हो गई तो हम अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ग्रैंड माँ होती है टेक केयर करने के लिए, है ना, आंटी होती है टेक केयर करने के लिए. बट अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और मम्मी अगर सिकनेस में है, इल है, बीमार है, तो टेक केयर करने वाला कोई नहीं, तो बच्चे भी सफ़र करते हैं, मम्मा भी सफ़र करती है कि तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी जैसे तैसे उठ के उसको फैमिली का टेक केयर करना होता है. अदरवाइज फादर को छुट्टी लेके घर बैठना होता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट न्यूक्लियर फैमिली का है. फोर्थ पॉइंट इज चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. जब बहुत सारे मेंबर्स में, बहुत सारे बराबरी के बच्चों में बच्चे रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना बेटर वे में सीखते हैं, एक दूसरे की बात मानना भी सीखते हैं, तो एक खुद के अधिकार के लिए वो लड़ना भी सीखते हैं. बट न्यूक्लियर फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है. बस बच्चों ने कहा, माता पिता ने सुना और उनकी बात पूरी हो गई. इसका मतलब उन्हें अपनी बात के लिए फाइट करना नहीं आता. कई बार दूसरों की बात माननी होती है, ये भी नहीं आता, ना सुनना भी नहीं आता है. तो ये सब जो थोड़े से माल एडजस्टमेंट हम जिसे कह सकते हैं, वो माल एडजस्टमेंट के पॉइंट्स हम इसके अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज में हमें डिसएडवांटेज में मिलते हैं. द फिफ्थ पॉइंट इज चिल्ड्रन लर्न द लिटिल शेयरिंग एंड केयरिंग. यहाँ लर्न और द की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, सो एट द टाइम ऑफ लर्निंग यू फोकस इट. LEARN, यहाँ लर्न की स्पेलिंग कंप्लीट होती है. डबल टी जो है वो सिंगल टी हो जाएगा. आप मुझे ध्यान से सुनिएगा और वहाँ पर आपको कंसिडर करना है ओनली द. तो चिल्ड्रन लर्न द लिटिल शेयरिंग एंड केयरिंग. बच्चों को लगता है कि जो है वो सिर्फ मेरा है. तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बच्चे शेयरिंग नहीं सीख पाते. तो ये हमने पढ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है. यू कैन लर्न हाफ हाफ आल्सो, है ना. आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से बहुत अच्छे से थोड़ा सा वीडियो देखा, फिर उसको लर्न किया, फिर अगेन चलाया, फिर अगेन लर्न किया. आप ऐसा भी कर सकते हो. मैं कंटिन्यूस में इसलिए बना रही हूँ कि आपका फ्लो टूट जाएगा तो आपको थोड़ा सा समझने में फिर वापस से आपको याद करना पड़ेगा जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. और अभी हम जब कंटिन्यूशन में चल रहे हैं तो आपको अभी पता है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. ठीक है. तो वैसे भी आप आधे घंटे की लेक्चर क्लास में, फिज़िकल क्लास में अटेंड करते हैं एंड 30 मिनट से ऊपर का ये वीडियो नहीं होगा. आप पैशंस रखकर बहुत अच्छे से वीडियो अटेम्प्ट करना. यूट्यूब का लिंक जब आपको शेयर किया जाएगा और उसके बाद आप लर्न करने के लिए 1 बाय 1 टॉपिक को ओपन करिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा. सो लेट्स सी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली. पहले हमने किसकी देखी बेटा, न्यूक्लियर फैमिली की. अब हम किसकी देख रहे हैं, जॉइंट फैमिली की. Is that clear? So let's see merit. Children get affection and blessings of lots of members in joint family. जब मैंने आपको न्यूक्लियर फैमिली पढ़ाई तो साथ के साथ हम जॉइंट फैमिली भी डिस्कस कर रहे थे और उससे हमें ये बात समझ में आ रही थी. ठीक है. तो क्या होता है, हमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का अफेक्शन. अफेक्शन का मतलब क्या होता है, अफेक्शन का मतलब होता है लव. अफेक्शन का मतलब क्या होता है, लव. और ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज दे आर हैंड ओवर मेनी ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ फैमिली. है ना. हमारे दादाजी दादी जी हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, ऐसा होना चाहिए, सुबह उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो बहुत सारी ट्रेडिशंस वो हमें हैंड ओवर करते हैं और इससे हमारे कल्चर को हम सेव करते हैं. थर्ड वन इज चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन अलोन इफ पेरेंट्स आर वर्किंग. क्लियर है आपको ये पॉइंट. अगर मम्मी पापा काम पर जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, तो बच्चे अकेले नहीं रहते हैं. बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स उनकी टेक केयर के लिए होते हैं. ड्यू टू फ्रिक्वेंट फैमिली गैदरिंग
दे लर्न, द नहीं है, जस्ट कंसिडर इट दे, THEY। अगेन अ करेक्शन, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। अगर पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे छोटे हैं, उनके साथ बैठ के प्लीज़ उनको ये बात कंसिडर करिएगा। दे लर्न, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट इन अ वेल मैनर। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को भी दी जाती है और इस तरह से बच्चे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं। क्लियर। अब डीमेरिट्स देखते हैं जॉइंट फैमिली की। ड्यू टू फ्रिक्वेंट फैमिली गैदरिंग बच्चों का स्टडी टाइम डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जैसे अभी अगर आप जो बच्चे जॉइंट फैमिली में हैं, किसी के कजिन्स, छोटे कजिन्स पीछे से नॉइस कर रहे होंगे, कभी कोई आ रहा होगा रूम में, कभी कोई आ रहा होगा, हो सकता है दादी माँ किसी को आवाज़ लगा रही तो उसकी भी नॉइज़ आपको आ रही होगी और आपको लग रहा होगा कि अरे मुझे कितना डिस्टर्ब हो रहा है, मैम समझा रहे हैं पर दूसरे नॉइज़ में मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डीमेरिट हो गया। ड्यू टू वर्कलोड ऑफ हाउस होल्ड कोरस मदर्स आर अनेबल टू स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन। अभी हमने देखा था जब मैं आपको न्यूक्लियर फैमिली समझा रही थी कि बहुत सारा काम होने की वजह से मम्मा थक जाती हैं और उनको अपने बच्चों की स्टडी या पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए कम टाइम मिलता है। थर्ड वन इज ड्यू टू डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स चिल्ड्रन गेट निगेटिव इफेक्ट समटाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोगों में ओपिनियन का डिफरेंस, अपने विचारों का डिफरेंस होने के लिए फ्रिक्वेंट आर्गूमेंट्स होते हैं और उन आर्गूमेंट का जो निगेटिव इफेक्ट है वो बच्चों पर भी पड़ता है। तो ये हमने देखे जॉइंट फैमिलीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, देन वी स्टॉप हियर। हम इनहेरिटेंस जो फैमिली से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे बेटा, बाय बाय।